ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟ 2 ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਲਵਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਓਨਲੀ 19-20 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਨਸੋਲਵ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਣੇ PDF 'ਚ ਲਾਸਟ 4 ਪੇਜ ਅਨਸੋਲਵ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ 19-20 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਸੈੱਲ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਓਨਲੀ ਈ ਆਫ ਸੈੱਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ EMF ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। EMF ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ E ਆਫ ਸੈੱਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਡੈਲਟਾ G ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਡੈਲਟਾ G ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਲੈਸਨ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਇਹ ਚਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਅਪ ਬਿਟਵੀਨ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ ਐਜ਼ ਫੋਲੋਜ਼। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਪਰ ਸੋਲਿਡ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਪਰ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕੁਅਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੁਲ ਕੇ ਕਾਪਰ ਦਾ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਕਾਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਲਵਰ ਐਕੁਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਸੈੱਲ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਐਕੁਅਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡ ਕਾਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਘੁਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ। ਔਰ ਸਿਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟ, 2 ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਹੈਂਡ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਕੈਥੋਡ। ਇਹ ਕੈਥੋਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਐਨੋਡ। ਇਹ ਐਨੋਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਐਨੋਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੈਥੋਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਇਫ 2 ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਵਰਕ ਅੰਡਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ EMF ਆਫ ਸੈੱਲ। EMF ਸੈੱਲ ਜਾਂ E ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਸੈੱਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਐਕੁਅਸ, ਕਾਪਰ ਐਕੁਅਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ E ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਾਪਰ ਦੇ ਔਰ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। जो कॉपर का देता है 0.34 वोल्ट और सिल्वर के लिए दिया है 0.80 वोल्ट, ठीक है जी। दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे देते हैं। तो सानू फाइंड करने को किया गया है ई स्टैंडर्ड ऑफ सैल फाइंड करना है। ई स्टैंडर्ड ऑफ सैल जो फाइंड करना है तो याद रखो इसका फार्मूला हमेशा होएगा ई स्टैंडर्ड का कैथोड माइनस एनोड। ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड। कैथोड वाला किहड़ा पासा सीगा, देखो आपां देखो रख लिया अपने बैठे हुए सामने स्क्रीन ते, जो राइट हैंड पासा सिल्वर का पासा देख रहे हैं ना, ये कैथोड पासा रहेगा। तो खब्बे हत्थ वाला पासा साडा एनोड, कॉपर वाला पासा एनोड रहेगा। ओके, तो कैथोड वाले पासे की जिहड़ी वैल्यू जिहड़ी सीगी
ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਉਹ 0.80 ਹੈ, ਐਨੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ -0.34 ਹੈ। तो ਅਸੀਂ माइनस करा तो आंसर इसका आ गया साढ़े कोल 0.46 वोल्ट। तो ये साडा ई स्टैंडर्ड ऑफ सैल आ गया। तो इस तरीके नाल असी ई स्टैंडर्ड ऑफ सैल कैलकुलेट कर सकते हैं ਜਦੋਂ दो तरह के रिडक्शन पोटेंशियल दिते होण। सिर्फ सानू पता इन्ना होना चाहिए कि कैथोड माइनस एनोड करना है और कैथोड वाला पासा किहड़ा है, एनोड वाला पासा किहड़ा है, ये दिमाग 'च रखना पेगा। दूसरे नूमेरिकल दे लई गिव द स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। सानू इत्थे 5 तरह दी कुछ मैटल्स है और उन्हों इलैक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ च ना हर एक मैटल की रिएक्टिविटी दी होंगी आ। तो ये इन्होंने 5 तरह के मैटल दे सानू रिडक्शन पोटेंशियल दिते आ, उन्होंने इलैक्ट्रोड पोटेंशियल कह लो इन्हों। तो पोटाशियम, सिल्वर, मरकरी, मैगनीशियम और क्रोमियम दे रखे आ। वो कह के रहे हैं, कहते अरेंज करो इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। वाधा क्रम लिखना है रिड्यूसिंग पावर का। तो बेटा दिमाग 'च एक गल बिठा लो कि थले लिखा भी आ लैसर दा ई स्टैंडर्ड वैल्यू। भी ई स्टैंडर्ड वैल्यू जिहड़ा सानू इलैक्ट्रोड पोटेंशियल दिता है उहदे विच सब तो घट जिहदी वैल्यू होएगी, जिहदी ई स्टैंडर्ड वैल्यू सब तो घट वैल्यू होएगी वो मोर रिड्यूसिंग पावर वाला होएगा, मोर रिड्यूसिंग पावर वाला होएगा। तो असी देखते हैं पोटाशियम के केस के अंदर पोटाशियम का सानू दिखाई दे रहा कि इत्थे -2.93 है। तो इत्थे सानू जिहड़ा माइनस का वैसे माइनस ना देखो तो 2.93 ये सब तो बड़ा दिखेगा। लेकिन बेटा की गल है कि नैगेटिव होने करके ये जिहड़ा है उल्ट गल होगी, ये सब तो छोटा है, ਇਹਦੀ पावर जिहड़ी है सब तो घट होगी। हुण ਇਹਦੀ पावर जिहड़ी सब तो लैसर होगी तो ਇਹਦੀ वैल्यू रिड्यूसिंग पावर सब तो ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो आपां सिर्फ दिमाग 'ਚ रखना ई स्टैंडर्ड वैल्यू किसी मैटल की जिन्नी घट होएगी ਉਹਦੀ रिड्यूसिंग पावर उन्नी ही ज़्यादा होएगी। ठीक है जी। तो इस हिसाब के नाल असीं वाधे क्रम 'ਚ अपने आप मैटल नूं लगा लवांगे। सिर्फ दिमाग 'ਚ ये रखना पेगा नैगेटिव वैल्यू वड्डी जिहड़ी हुंदी है ना वो सब तो छोटी हुंदी आ, ते नैगेटिव वैल्यू सब तो छोटी जिहड़ी हुंदी है ना वो एक्चुअली वड्डी हुंदी है। आंसर उहदा वड्डा हुंदा है। ओके, ये तो मैथमेटिकल गल है, समझ जाओगे। दैन तीसरा क्वेश्चन है राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन। तो ये नर्नेस्ट इक्वेशन वाले बहुत सारे नमैरिकल आने हैं। साडा मेन मकसद ही ये है कि नर्नेस्ट इक्वेशन वाला नमैरिकल इस लैसन चो साडी पक्की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि 90% संभावना आपां नूं यही रहिंदी है कि नर्नेस्ट इक्वेशन वाला सानू नमैरिकल आना है। राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द EMF ऑफ फॉलोइंग सैल एट 298 कैलविन। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 298 ਕੈਲविन, कई बारी होएगा कि ये दिता होवे 25 डिग्री सैल्सीयस और कई बार ये दिता होवे एट रूम टैंपरेचर। तिन्ना का मतलब इक्को ही आ। रूम टैंपरेचर हुंदा 25 डिग्री सैल्सीयस तो डिग्री सैल्सीयस जिहड़ा वो हुंदा है 298 कैलविन। तो इन्हां दे वास्ते नर्नेस्ट इक्वेशन ने कैलकुलेशन करके ना एक इक्वेशन बना रखी है। तो ध्यान रखना इस टैंपरेचर के लिए ही एक नर्नेस्ट इक्वेशन बनाई गई है। अगर टैंपरेचर इस तो वध या घट होएगा तो उस वेले जो टैंपरेचर कंडीशन है वो नर्नेस्ट इक्वेशन की सानू एक्चुअल भरनी पेगी, उस वेले वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन 298 25 डिग्री सैल्सीयस या रूम टैंपरेचर के आते हैं, तो वो यही इक्वेशन असीं यूज़ कर लेनी है। तो ये भी एक सैल बनया है कॉपर एंड सिल्वर का, और कॉपर एक्वस च चेंज हो रहा है और सिल्वर जिहड़ा एक्वस है ना वो सॉलिड च चेंज हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल भी दे रखा है इन्होंने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का दे रखा है 0.34 वोल्ट, सिल्वर का है 0.80 वोल्ट, और लॉग भी गिवन है, लॉग 0.130 गिवन है इक्वल टू -1.1139। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि साढ़े कोल कुछ सोल्यूशन करने वाले नर्नेस्ट इक्वेशन 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ लॉग 0.130 ਦੀ ਕਿਤੇ लॉग ਲੈਣਾ आएगा, और ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ लॉग टेबल नहीं दिता तो सानू ਇੱਥੇ ਨਾਲ ही गिवन देती ਉਹਦੀ वैल्यू, तो ਇਹਨੂੰ पुट कर मतलब कि आएगा ही आएगा, इन्ना दिमाग 'ਚ आ गया अपने। तो सब तो पहले तो इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन जी है कॉपर जोड़ा है वो 2 इलैक्ट्रॉन लूज करके एनोड के उत्ते कॉपर एक्वस च बदल रहा है, तो जोड़ा सिल्वर है वो एक्वस फॉर्म तो इलैक्ट्रॉन गेन करके वो सिल्वर मैटल च चेंज हो रहा, वो सॉलिड बन रहा है।
तो ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਓਵਰਆਲ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ n का वैल्यू 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ n दो इलेक्ट्रॉन ਦਾ चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दो ਦਾ आदान प्रदान हो रहा है इसमें रिएक्शन है। तो नर्नस्ट इक्वेशन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੇਗੀ E ऑफ सैल, E सैल ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੁਅਲ टू ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ E स्टैंडर्ड ऑफ सैल ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ E वैल्यू है ना ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ E स्टैंडर्ड ऑफ सैल। और E स्टैंडर्ड ऑफ सैल ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ टू ਹੁੰਦਾ ਆ E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, ठीक है ना। ये अं पहला भी वैल्यू कटे E ऑफ कैथोड और एनोड की वैल्यू जी हैगी आ ये इन्होंने कर रखी है इत्थे। तो उस तो बाद अगे लिखा इन्होंने प्लस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग अभी आ गया कंसनट्रेशन ऑफ सिल्वर बाय कंसनट्रेशन ऑफ सिल्वर ओवर किया इन्होंने ये कॉपर। देखो जे तो अपनी ए वाला साइन देखो, ए साइन अगर प्लस का लिखा है, अगर ये प्लस का लिखा है तो अपनी वैल्यू जी है वो लॉग की जी वैल्यू है ना, लॉग की वैल्यू बड़े आराम नाल अपने आप रहेगी कैथोड ओवर एनोड। अगर ये प्लस है तो कैथोड ते सिल्वर सीगा, कंसनट्रेशन ऑफ सिल्वर ओवर कंसनट्रेशन ऑफ कापर, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू प्लस लिखी है तो कैथोड ओवर एनोड यानी कि लॉग जोड़ा लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ कैथोड ओवर एनोड। बट यही वैल्यू अगर नैगेटिव होंदी इत्थे ये वैल्यू अगर असीं माइनस साइन यूज़ करते तो असीं इत्थे लॉग जिहड़ा सी वो यूज़ करना सीगा कंसनट्रेशन ऑफ एनोड, पहला एनोड करना है, एनोड ते कॉपर सीगा, कॉपर कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर ओवर कंसनट्रेशन ऑफ सिल्वर, ठीक है जी। तो सिल्वर के अगे ये दो आयन लिखे आ, ये कंसनट्रेशन का रेज टू पावर हो जाना सीगा। कॉपर के अगे वैल्यू 1 ही लिखी है तो वही वैल्यू 1 है, लिखो चाहे ना लिखो। तो इस तरीके नर्नस्ट इक्वेशन जी आ वो हमेशा याद रखनी है, लिख लो तुसी जी ई ऑफ सैल इज इक्वल टू होएगा ई स्टैंडर्ड ऑफ सैल प्लस, अगर प्लस लिखा है तो 0.059 और डिवाइडेड बाय n का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा, लॉग ऑफ ये प्लस वैल्यू है तो लॉग ऑफ आप ऊपर सिल्वर रखना सीगा कंसनट्रेशन ऑफ सिल्वर बाय कॉपर, क्योंकि सिल्वर जिहड़ा हैगा वो कैथोड ते है तो आप कैथोड ओवर एनोड रखना सी। अगर यही वैल्यू इस जगह ते नैगेटिव हुंदी तो असी कंसनट्रेशन जी है कॉपर ओवर सिल्वर कर देना सी। ये बार बार तुम इस तरह के नुमैरिकल अगे तो अगे करते रहोगे, तुहानूं अपने आप प्रैक्टिस हो जानी है कि नर्नस्ट इक्वेशन यही बार बार लिखी जानी है, ठीक है ना। एक दो बारी रफ कॉपी पर लिख के देख लो तो प्रैक्टिस हो जानी है अपनी किस तरह लिखनी है आगे। तो आप वैल्यू पुट की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर माइनस कॉपर 0.80 माइनस 0.34 प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग सिल्वर का कंसनट्रेशन देखो गिवन है, देखो ये ब्रैकेट से जो सैल बनाया सैल से गिवन है ना सिल्वर का कंसनट्रेशन 1 × 10⁻⁴ और कॉपर के लिए गिवन है 0.130 मोलर, ओके जी। तो इत्थे कंसनट्रेशन जो सानू सैल दे विच उपर दिखाई दे रही हुंदी आ वो असीं लिखनी है। तो कंसनट्रेशन लिखी, इसनूं सॉल्व करा तो लॉग किवें सॉल्व करते हैं इसका अगर नहीं समझ तो किसी भी यूट्यूब की वीडियो तो जाओ तो हाउ टू फाइंड लॉग उत्थे जाके तुसीं प्रैक्टिस कर लो। बाकी तुसी 10वीं लैवल तक जिन्ना कि लॉग एंटी लॉग का काम कर रखा है ये ज़्यादा काम नहीं है। उस तरीके लॉग में इतने सॉल्व करा उन्होंने, सॉल्व करके आंसर 0.025 आंसर इसका आ गया जी। नैक्सट क्वेश्चन है अपना कैलकुलेट EMF ऑफ सैल एट 25 डिग्री, 25 डिग्री सैल्सियस आ गया ਜਾਂ ਇੱਥੇ 298 ਕੈਲਵਿਨ ਆਂਦਾ। तो गल ਇੱਕੋ ही सी क्योंकि ਅਸੀਂ सेम नर्नस्ट इक्वेशन लैके चलनी है। तो ये गिवन इलैक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का भी गिवन है, जिंक का -0.763 वोल्ट है और फेरस का गिवन है -0.44 गिवन है वोल्ट, ठीक है जी। तो log 2 गिवन है, अगर log 2 का वैल्यू गिवन है यदा मतलब ये हो गया जो log की वैल्यू गिवन होंगी है ना यदा मतलब ये हो गया कि log की वैल्यू ये वाली सॉल्व करन तो बाद इत्थे log 2 की जगह असी
जो ये वैल्यू गिवन है ना वो भर देनी है, ये मल्टीप्लाई लिख के 0.310 ये वैल्यू भरनी है, ठीक है ना, कभी भी वैल्यू गिवन हो। तो असी हुण एक होर गल देखिए, इत्थे साडे कोल ई ऑफ सैल इज इक्वल टू आ रहा ई स्टैंडर्ड ऑफ सैल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, तो माइनस है तो माइनस असी हुण जिंक देखो एनोड वाला पासा उपर रखिया, अगर माइनस 0.059 लिखते हैं तो लॉग की वैल्यू जी हैगी है एनोड उपर रखनी आ, तो कैथोड नीचे रखनी है। अगर इत्थे प्लस 0.059 लिखते हैं तो फिर असी कैथोड उपर रखना सी, एनोड नीचे रखना सी। ये गल बेटा थोड़ी ही समझने वाली है, ज़्यादा नहीं, एक दो बारी हाथ नाल लिखे देख लो तुहानूं समझ लग जाएगी। तो जिहड़ा ई स्टैंडर्ड ऑफ सैल है ई नॉट की वैल्यू है जो इत्थे 0.323 लिखी आ, ये तो अपनी जो रिडक्शन पोटेंशियल उपर वैल्यू गिवन है ना उन्होंने माइनस करके ही आई आ, क्योंकि अपना देखो ये जिंक का वैल्यू गिवन है और ये फेरस का वैल्यू गिवन है। फेरस जिहड़ा है साडा ये कैथोड है और जिंक साडा एनोड है, तो हमेशा असी कैथोड माइनस एनोड करना है, तो कैथोड माइनस एनोड मतलब फेरस की वैल्यू चों जिंक की वैल्यू घटानी है, वो घटा के साडा ये आंसर आ जाना है, ठीक है जी। तो इस तो बाद असीं ये कंसनट्रेशन वैल्यू लिखियां करके देखा, देखो इत्थे log 2 ते आके जो सानू उपर गिवन है log 2 तक पहुँच गए। log 2 ते पहुँचने तो बाद log 2 की जो वैल्यू गिवन है वो एज इट ही पुट की और इस रिलेशन सॉल्व करके साडे को EMF आ गई 0.313 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द EMF फॉलोइंग सेल एट 298 कैलविन, 298 कैलविन आ गया। हूँ सैल बना के दिखाया गया भी कॉपर सॉलिड है, कॉपर एक्वस च चेंज हो रहा है, सिल्वर एक्वस है, सिल्वर सॉलिड च चेंज हो रहा है। तो इत्थे सैल दे विच कंसनट्रेशन भी दे रखी है भी कॉपर की कंसनट्रेशन 0.130 है और सिल्वर की कंसनट्रेशन 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ गिवन है। अच्छा जी, इन्हों का रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट सिल्वर के लिए गिवन है प्लस 0.80 और कॉपर के लिए गिवन है प्लस 0.34 वोल्ट। इन्ना सारा काम सानू गिवन है। नर्नेस्ट इक्वेशन जोड़ा है बार बार वही आएगी नर्नेस्ट इक्वेशन, ई ऑफ सैल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सैल कला लिख दो, तो चाहे इसे वैल्यू जी है कला कला लिख दो भी ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड माइनस 0.591 डिवाइडेड बाय 2। कई बारी ये 0.059 तक लिखा होंगे, कई बारी एक डिजिट वैल्यू होर अगे वध जाती है 0.0591, तो तुहाडी इच्छा है तुसीं चाहे 1 तक जाओ ना जाओ, आंसर लगभग तुहाडा सेम ही रहेगा। तो लॉग ऑफ इत्थे कॉपर बाय सिल्वर लिखा है, कॉपर बाय सिल्वर, तो कॉपर मतलब एनोड बाय कैथोड लिखा है। एक्चुअली माइनस की वैल्यू जी माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, तो आगे जाके असी एनोड बाय कैथोड ही कंसनट्रेशन करना है। हुण ये जी लॉग कंसनट्रेशन लिखा है ना, तो ये वो वैल्यू है जी कि असी उपर ये वाली कंसनट्रेशन गिवन है, ये वैल्यू पुट करनी है ये इस जगह पर कंसनट्रेशन की, ठीक है जी। तो ये माइनस है तो इस करके ये एनोड वाला पासा है, एक कैथोड वाला पासा है, असी एनोड ऊपर रखा है और कैथोड नीचे रखना है, इस माइनस से ये डिपेंड करेगा। तो असी जो इसनों सॉल्व किया तो लॉग ए वाला आ गया और लॉग ए वाले सॉल्व करने तो बाद साडा आंसर 0.25 आंसर आ गया। और यही कॉपर एंड सिल्वर का उपर भी तुसीं ये न्यूमेरिकल पहला कर चुके हो, सेम आंसर आया सी उसका। लिखा है क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 5 सेम, पर थोड़ा सा मैथड डिफरेंट है। 6वां क्वेश्चन है, राइट नर्नेस्ट इक्वेशंस एंड कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल एट 298 कैलविन। मैग्नीशियम एक्वस से चेंज हो रहा है और सिल्वर एक्वस जो है सॉलिड में चेंज हो रहा है, सिल्वर सॉलिड में। तो मैग्नीशियम का कंसनट्रेशन गिवन है 0.130, तो सिल्वर का है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन है इन्होंने, मैग्नीशियम के -2.36 वोल्ट, सिल्वर का 0.80 वोल्ट। नर्नेस्ट इक्वेशन माइनस पा के लिखा है तुसी, तो ई ऑफ सैल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सैल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस करके लिखा है बिकॉज अपनी इस रिएक्शन के अंदर 2 इलैक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। मैग्नीशियम ने 2 इलैक्ट्रॉन गवा के 2 पॉजिटिव बनया और दोनों इलैक्ट्रॉन जोड़े है सिल्वर के 2 एटमां ने मिलकर गेन करिया, तो सिल्वर के 2 एटम ने मिलकर गेन करिया, इस करके कंसनट्रेशन दे विच सानू सिल्वर की कंसनट्रेशन के उत्ते रेज टू पावर ये देखो 2 भी लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये कंसनट्रेशन ऑफ दोबारा से एनोड
ਬਾਈ ਕੈਥੋਡ। ਇੱਥੇ ਐਨੋਡ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੈਥੋਡ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਓਕੇ, तो इस दे विच जो तुसीं वैल्यू पुटअप कर दोगे तो आंसर जो है देखो, पहला तो ई स्टैंडर्ड ऑफ फाइंड किया, ई स्टैंडर्ड ऑफ सैल यानी कि ई स्टैंडर्ड ई नॉट उपर ई जीरो सैल पाया ना, ई स्टैंडर्ड बोल दें इसनूं। ई स्टैंडर्ड ऑफ सैल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड। वैल्यू जो माइनस करने तो बाद साढ़े को प्लस 3.17 वोल्ट आ गया। तो ई ऑफ सैल इज इक्वल टू 3.17। तो बाकी जी वैल्यू सारी कंसनट्रेशन की मैगनीशियम एलमीनीयम की भरन तो बाद लॉग लैन तो बाद आंसर जोड़ा 2.95 वोल्ट आ जाएगा। कैलकुलेट द EMF सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। EMF कैलकुलेट कर, देखो बेटा सैल की टाइप डिफरेंट हो सकती है। क्रोमियम का फेरस ना आ गया, क्रोमियम का कैडमियम ना आ गया, फेरस का जिंक नाल आ गया। तो किसी वेले कोई कैथोड बन गया, कोई एनोड बन गया, पासा चेंज करते तो उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन होंगे आ। बट करना की है, EMF फाइंड करना ना, तो EMF फाइंड अगे जाके सारे जोड़े वैल्यू है ना वो फार्मूला तो नर्नस्ट इक्वेशन का ही लगना है। अगे बाकी इतने प्लस या माइनस जिस जगह पर मैं कह रहा चेंज करके लिख रही हो, उन्ना सिर्फ फर्क ये पेगा कि लॉग के विच एनोड ओवर कैथोड होना कि कैथोड ओवर एनोड होना, उस गल ते थोड़ा सा फर्क पैना आ। तो इस रिएक्शन के पहले इन्होंने रिएक्शन करके देखी आ, तो ये भी रिएक्शन ना बैलेंस नहीं सीगे। तो बैलेंस इस करके नहीं क्योंकि जो पावर है ना वो क्रोमियम 3 पॉजिटिव है और फेरस का 2 पॉजिटिव है। ठीक है ना, क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, फेरस का 2 पॉजिटिव है। तो इन्हों के इलैक्ट्रॉन बैलेंस करने लिए ना ये रिएक्शन देखो पहला लिख ली भी क्रोमियम ने 3 इलैक्ट्रॉन गवाए, 3 पॉजिटिव बन गया और 3 इलैक्ट्रॉन प्लस दूजे पास लिखते। फेरस ने फेरस 2 पॉजिटिव ने 2 इलैक्ट्रॉन गेन किए और फेरस बन गया। अभी इलैक्ट्रॉन बैलेंस करने लिए पहली रिएक्शन में 2 मल्टीप्लाई करता, दूसरी में 3 मल्टीप्लाई करता। तो दोनों च इलैक्ट्रॉन 3 2 या 6 और 2 3 या 6 6 इलैक्ट्रॉन बन जाएंगे। इलैक्ट्रॉन कट्टे जाएंगे और 2 जोड़े क्रोमियम नाल भी कॉपर मल्टीप्लाई होंगे, 3 जोड़े फेरस नाल मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरह सम ऑफ हर रिएक्शन जी साढ़े को नीचे आ जाएगी। तो ई सैल जोड़ा हो जाएगा ई स्टैंडर्ड ऑफ सैल प्लस करके ये रिएक्शन लिखी आ। अगर प्लस लिखा तो सानू कैथोड ओवर एनोड की जड़ा है लॉग कैथोड ओवर एनोड लिखिया होएगा। तो ये तुसी अगर माइनस करके लिख लो और एनोड ओवर कैथोड कर लो तो भी तुहाडे आंसर च फाइनल च कोई चेंज नहीं आएगा। तो असी सिर्फ वैल्यू पुटअप की आ। तो तुसी एक गल याद रखनी है कि जड़ी साडे कोलों जड़ी ये वाली वैल्यू है 2 और 3, ठीक है ना, रेस टू पावर ये जी है ना, देखो क्रोमियम के अगे 2 लिखा है तो इतने क्रोमियम की पावर 2 आ गया, फेरस के अगे 3 लिखा है, फेरस की पावर जी इतने 3 आ गया। ठीक है ना, इस तरीके ये इन्हों की पावर बन जाएगी। तो इसनों सॉल्व करने तो बाद तुसी आंसर 0.26 वोल्ट कर लोगे। नैक्सट क्वेश्चन भी की है, गिब्स एनर्जी का है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, नॉट गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब डेल्टा जी ऊपर नॉट। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला -n ई स्टैंडर्ड एफ या -f ई स्टैंडर्ड। ठीक है ना, तो मतलब ये 3 चीज़ों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड साढ़े को आएगा। एन का मतलब है इलैक्ट्रॉन चेंज, 2 इलैक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। एफ का वैल्यू कॉन्सटेंट रहिंदा है हमेशा 96,500 और ई स्टैंडर्ड जड़ा है वो अही कैलकुलेट करना हुंदा है हमेशा कैथोड माइनस एनोड। ठीक है ना, तो पहला भी दस चुका जड़ा ये ई स्टैंडर्ड की वैल्यू हुंदी आ, ये ई स्टैंडर्ड की वैल्यू फाइंड करने लिए असी ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड करना है। कैथोड केड़ा है, ई वाला कैथोड है, ई वाला एनोड है। ये मतलब सॉरी ये सैल नहीं गिवन, ये सैल नहीं गिवन, तो रिएक्शन गिवन है कैथोड ओवर एनोड। ये साढ़े कोल कैथोड ई स्टैंडर्ड की वैल्यू एज इट ही गिवन ही है, साढ़े कोल पहले ही गिवन है प्लस 1.1 वोल्ट। ठीक है ना, तो सानू फाइंड भी नहीं करनी, ये 1.1 वोल्ट ई की वैल्यू लिखी, एफ की 96,500, 2 इलैक्ट्रॉन चेंज किए 2 लिखी, माइनस अगे लिखे सॉल्व करता, साढ़े कोल डेल्टा जी स्टैंडर्ड वैल्यू आ गया। दैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ना वो डेल्टा जी नॉट जी वो फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड ये सानू देखो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और सैल भी बनया पाया आप जानते हैं कैथोड किधर है एनोड किधर है। ठीक है जी, तो साढ़े कोल ये है कैथोड ये है एनोड, इन्हों का पहला माइनस करके असी ई स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड कर लाँगे जी कि असी इत्थे जाके पुट करनी है -NF ई स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो ये माइनस करने तो बाद साढ़े कोल ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके आ देखो ये माइनस करने तो बाद ये वैल्यू आ गई, पुट करके वैल्यू ये वाली साड़ी
ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। 9ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। 10ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿੰਕ ਤੇ ਕਾਪਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਕ ਤੇ ਕਾਪਰ ਦਾ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, -NF E ਆਫ ਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ ਐਨੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਐਫ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 11ਵਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਈ ਆਫ ਸੈੱਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਆ। ਈ ਆਫ ਸੈੱਲ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਆ ਈ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਜਦੋਂ ਈ ਆਫ ਸੈੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆ ਸੀ -NF ਈ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈ ਆਫ ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ ਈ ਆਫ ਐਨੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ, ਓਨਲੀ ਡੈਲਟਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹੈ -NF E। ਓਕੇ, ਇਹ NF E ਆ, ਇਹ E ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ NF E ਹੈ। ਔਰ NF E ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ E ਹੈ ਨਾ, ਇਹ EMF ਆ। ਇਹ EMF ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ E ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ E ਆਫ ਸੈੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਈ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਈ ਆਫ ਸੈੱਲ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਈ ਆਫ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਈ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਈ ਆਫ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ आंसर ਕੱਢ देंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन च सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड अलग चीज़ है फाइंड करना और डेल्टा जी अलग चीज़ है फाइंड करना। और ये भी ध्यान रखना है कि ई ऑफ स्टैंडर्ड ये अलग चीज़ है, ई स्टैंडर्ड ऑफ सैल, और ई ऑफ सैल ये EMF है, ये नर्नस्ट इक्वेशन के नाल फाइंड की जाती है। और इसका यूज़ डेल्टा जी लिए किया जाता है और इसका यूज़ डेल्टा जी स्टैंडर्ड लिए किया जाता है। आगे 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन च क्या पता करा इन्होंने हैं, इन्होंने जाके पहला ये क्वेश्चन देखो सेम है तीसरा तो जिमें पंजवां, तुसी मैथड थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन जो तीसरा पंजवें वर्गा ही ये क्वेश्चन है अपना। तो 13वां क्वेश्चन है, ये साडे कोल पहले क्वेश्चन नालों थोड़ा सा डिफरेंट है। ये असी डिसोसीएशन फाइंड करनी है इनफाइनाइट डिल्यूशन दे लई, ठीक है ना। क्वेश्चंस ला लगना है ये अंदर। तो ये न्यूमेरिकल भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है, न्यूमेरिकल तो गिवन है। तो 2 कैमिकल है साडे कोल, पोटाशियम नाइट्रेट और लिथियम नाइट्रेट, और इन्हां दा साडे कोल डिसोसीएशन वैल्यू भी गिवन है 145 और 110, ठीक है जी। तो इन्हां दे विचों कह रहे हैं कि पोटाशियम दे लई गिवन है 73.5 तो लीथियम दे लई वैल्यू फाइंड करनी है। तो पोटाशियम नाइट्रेट दे लई 145 सी, लीथियम नाइट्रेट दे लई 110 सी वैल्यू। जदों कि पोटाशियम दे लई वैल्यू सी 73.5, तो असी कहते जानते हैं कि पोटाशियम नाइट्रेट की वैल्यू कढ़नी हो ना, पोटाशियम की वैल्यू प्लस नाइट्रेट की वैल्यू के बराबर होंदा आ। तो ये गिवन सी पोटाशियम नाइट्रेट की 145 इजिकल टू 73.5 प्लस नाइट्रेट, इतों नाइट्रेट की वैल्यू साढ़े को आ गई 71.5। हुण लीथियम नाइट्रेट की वैल्यू इजिकल टू हो जाएगी लीथियम प्लस नाइट्रेट, और लीथियम नाइट्रेट की वैल्यू तो गिवन सी 110 इजिकल टू हो जाएगी लीथियम की वैल्यू प्लस 71.5 जो कि असी ऊपर फाइंड कर रखा है। तो इतों लीथियम की वैल्यू जी है 30.5 इस यूनिट के नाल जी है ये इक्वेशन आ जाएगी। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं इस टाइप के आते, एक अद्धा न्यूमेरिकल तुसी जरूर प्रैक्टिस रखना। पर हाउ मच चार्ज इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन
ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਅਲਮੀਨੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਨੇ ਗਵਾਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ टू कॉपर मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गवा के कॉपर 2 पॉजिटिव बनाया, तो इसने कॉपर बनना है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पैणगे, ठीक है ना। तो इन्हां दे जिन्ने इलैक्ट्रॉन का चेंज है ना उन्ने फैराडे दे नाल मल्टीप्लाई करके साडे कोल चार्ज पता लग जाएगा। जिवें कि पहली इक्वेशन अलमीनीयम 3 पॉजिटिव अगर 3 इलैक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 अलमीनीयम बनेगा। ਇਹਦਾ मतलब हो गया 3 इंटू एफ 3 इंटू 56,500 एफ का मतलब फैराडे है। 56,500 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया जो आंसर आया, तो इस वास्ते 2.895 इंटू 10⁵ कॉलम चार्ज आ गया। 1 मोल ऑफ अलमीनीयम 3 पॉजिटिव ਨੂੰ अलमीनीयम ਚ चेंज होना है तो 2.895 इंटू 10⁵ कॉलम चार्ज आएगा। कॉपर के लिए भी सेम है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 2 इंटू एफ 2 इंटू 96,500 किया 1.93 10⁵ कॉलम रहेगा। और ये मैगनीज ऑक्साइड जोड़ा है ये 1 नैगेटिव है, ये 5 इलैक्ट्रॉन का चेंज है। 5 इलैक्ट्रॉन का चेंज इस तरह बेटा कि ये जी रिएक्शन है ना, अगर MnO4 1 नैगेटिव ये MN का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए, MN का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए तो इत्थे असी मान लो असी रखिया X जिसका फाइंड करना, तो अगे जाके जड़ा है ऑक्सीजन 4 है, 4 इंटू -2 एक ऑक्सीजन का -2 होया करता इक्वल टू टोटल चार्ज जो -1 है ना उत्ते -1 लिख देंगे हैं। तो X -2 ये हो गया -8 इजिकल टू -1, तो X इजिकल टू 8 दूसरे साइड से गया तो अपने को +7 आ गया। तो इत्थे MN का जो चार्ज आ गया ना, MN का चार्ज इत्थे आ गया +7, ਇਹਦਾ ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। दूसरे पासे सानू दिखाई दे ही रहा कि ये +2 है। +7 तो +2 तक पहुँचने के लिए इलैक्ट्रॉन किन्ने चेंज होए 5 इलैक्ट्रॉन, तो वो 5 इलैक्ट्रॉन जोड़े है इत्थे लिख रखे हैं इन्होंने। तो इस करके हुण 5 × 96,500 करांगे तो इन्ना चार्ज लगेगा MnO4 1 नैगेटिव नूं MN2 पॉजिटिव च चेंज होने लई। ओके, यदि प्रैक्टिस करना तुसी आगे है। तो अगला न्यूमेरिकल तुहानूं लिखा है ये सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़ के देखना और इसको खुद प्रैक्टिस करना है। 16वां न्यूमेरिकल डू इट योर सैल्फ है, इस दे नाल दा न्यूमेरिकल उपर हो चुका है। 17वां न्यूमेरिकल इहदा भी आंसर गिवन है, 18वें का भी आंसर गिवन है और 19वें का भी आंसर गिवन है। ये तुहाडे अपने प्रैक्टिस वास्ते है। 20वां न्यूमेरिकल भी तुहाडी अपनी प्रैक्टिस वास्ते है और 21वां न्यूमेरिकल भी तुहाडी अपनी प्रैक्टिस वास्ते है। ये न्यूमेरिकल तुहाडे अपनी प्रैक्टिस वास्ते इस करके है क्योंकि बिल्कुल ये नाल दे न्यूमेरिकल उपर आपां डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्ने के अगर तुसी बड़े ध्यान नाल इसनूं सुन के एक बार रफ कापी ते बेटा प्रैक्टिस कर लो इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री नूं, तो हर टाइप का न्यूमेरिकल जिहड़ा हैगा असीं सॉल्व डिस्कस कर रखा है। अनसॉल्व जिहड़े इस PDF के लास्ट से 4 पेज है वो इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री के जिन्ने के भी न्यूमेरिकल है एक तुसी वो वाले देखने हैं, एक ये वाले सॉल्व देख लेने हैं। तो अपना 3 नंबर का जिहड़ा परपज है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के इस न्यूमेरिकल का वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अपनी प्रैक्टिस करो। डिस्क्रिप्शन च PDF च जाके उसनों डाउनलोड करके सेव करके बेटा रख लो। वो साडा PDF ਜਿਹੜਾ ना साडा मकसद है इस इन्हां न्यूमेरिकल तो असी होर बाहर नहीं जाना, होर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।